बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. I am your mathematics teacher. This is your academic week number 4, and in our previous video we had completed up to question number 7 of exercise 2C. Now today we are going to start with question number 9A. Question number 9A, page number 43. First we have write the question, which is 24 multiplied by minus 2 multiply 5 divided by minus 6. For solving this question, show the solution here. First step is rewrite the question. 24 multiplied by minus 2 multiplied by 5 divided by minus 6. After that, mention equal sign and solve this equation. Solve this expression. It is not an equation, it is an expression. So as we see that we have multiple operator in this expression, so we have to solve this by using BODMAS. According to BODMAS, first we have to solve the bracket, after that multiply, and after that we have to solve the division sign of this expression. So first I am going to multiply these two numbers. First we have to multiply the sign of that numbers. We have no sign with 24, it means it is a positive number, and positive sign with this number, so plus, and the sign of 2 is minus. Plus minus minus, sign multiply होगा, and after that we have to multiply the numbers. 24 multiplied by 2, 24 multiplied by 2 is equals to 48. Rest of the digits as it is copy कर लेंगे. Multiply by 5 divided by minus 6. Now again multiply. Now multiply both 48 and 5. सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस. नाउ 48 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय minus 6. बोथ आर नंबर आर डिविजिबल बाय डिवाइड बाय ईच अदर. क्या मैं इनको इस तरह से लिख सकती हूँ, माइनस 240 अपॉन माइनस 6. डिवाइड को हम इस तरह से भी शो करते हैं. नाउ माइनस माइनस, दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 240 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारे पास 40 आंसर. माइनस माइनस ऐसे भी प्लस होता है. हमने साइन का टेबल याद किया था, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस. इसी अगर वो रूल भी हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं. और डिवीजन में हम एक ये भी करते हैं कि अगर ऊपर यानी न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो उन्हें कैंसिल भी कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 40 बिकॉज माइनस माइनस प्लस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. एच, क्वेश्चन नंबर 9H, विच इज bracket minus 10 minus square bracket 12 plus minus 3 square bracket closed divided by
minus 3. Solution. Now first step is always rewrite the question. Minus 10 minus 12 plus minus 3 square bracket close divided by minus. According to board mass, we have to solve the bracket first, but here we have three types of bracket. This one, curly bracket, square bracket and small brackets. बट बहुत सारे ब्रैकेट हैं. सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? इफ़ वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, तो जो हम इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे. इनर मोस्ट ब्रैकेट जो सबसे अंदर है ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट है, इनके अंदर ये वैल्यू है, फिर ये वाला पेयर ऑफ ब्रैकेट्स है. नाउ इनर मोस्ट ब्रैकेट इज माइनस 3 स्क्वायर, सो वी हैव टू सॉल्व माइनस 3 स्क्वायर फर्स्ट बिकॉज इट इज़ द इनर मोस्ट ब्रैकेट, बिकॉज इट इज़ इन द इनर मोस्ट ब्रैकेट. माइनस 10 माइनस 12 as it is plus to solve this bracket we have to solve this operator which is power 2. 3 power 2 means 3 multiplied by 3 which is equals to 9, and minus, both have minus and minus plus, so plus 9 bracket close, curly bracket close, divided by minus 3 as it is. Now move on to the next bracket which is this square bracket. To solve this square bracket we have to solve these two numbers and we have to add these two numbers. Now minus 10 as it is, minus 12 plus 9 is equals to 21, divided by minus 3. Now solve these two brackets. Minus as it is, 10 as it is, minus 21 divided by minus 3. Now to solve this bracket we have to add these two numbers. Minus first we have decided हमें इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है या प्लस करना है. वो कैसे डिसाइड करते हैं? माइनस माइनस प्लस, दोनों के साइन को मल्टीप्लाई किया, प्लस आंसर आया. इट मीन हमें इन दोनों को प्लस करना है, इन्हें प्लस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 31. ये क्वेश्चन गलत हो गया. Here we have one more plus 3 square in this question. सब जगह इस प्लस 3 स्क्वायर को भी सॉल्व करते जाएंगे. प्लस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, सॉरी, 3 3 9, 9 3 27, bracket closed, divided by minus 3 as it is, plus 27, bracket closed, divided by minus 3. Now minus minus plus, 10 plus 21 is equals to 31, and the sign of greater value between 10 and 21, 21 is greater and sign of greater value is minus, so minus plus 27 as it is, divided by minus 3. Now solve these numbers again. To solve this bracket, minus plus minus, 31 minus 27 is equals to 4. Use the sign of greater value in between 31 and 27. 31 is greater, so minus with answer and minus 3 as it is. Now I also write this minus 4 upon 3 as minus 4 divided by minus 3. These two minus sign cancel each other.
4/3. Now the given fraction is an improper fraction in which denominator is less than numerator. Its mean denominator means bottom number and the numerators mean top number. The bottom number is less, so we have divided these two numbers 3, 4. You know that how to divide two numbers. 3 1s are 3. 1 remainder. 1 whole 1/3. Answer. ओके दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन रीराइट किया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन रीराइट किया. सेकंड स्टेप में हमें इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड द इनर मोस्ट ब्रैकेट इज दिस वन. सो इसको सॉल्व करने के लिए पावर को सॉल्व किया. जब हमने पावर का ऑपरेटर सॉल्व किया है तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जितने भी पावर के ऑपरेटर्स मौजूद हैं हम सबको सॉल्व कर लेंगे. -10 एज इट इज़ लिखा, -12 एज इट इज़ प्लस. नाउ -3 स्क्वायर मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस एंड 3 3s are 9. सो आंसर इज 9. -3 की जगह मैंने लिख दिया 9. Plus as it is now 3 cube means 3 times multiplied by itself. So 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equals to 27. So 3 cube is equals to 27 divided by -3. Now next step is solve the next pair of bracket, which is 12 plus 9 minus 10 as it is minus as it is. 12 plus 9 is equals to 21 plus 27 as it is divided by -3. Now solve this one bracket. टू सॉल्व दिस ब्रैकेट इट्स नॉट, इसके अंदर कोई भी साइन मौजूद नहीं है तो इसे एज इट इज लिख देंगे -10 -21 प्लस 27. नाउ सॉल्व दिस लास्ट पेयर ऑफ ब्रैकेट. इसे सॉल्व करने के लिए इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा. 3 टर्म से हमारे पास 2 पेयर्स बना के सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस 2 नंबर विच इज -10 -21. टू सॉल्व दिस माइनस माइनस प्लस हमें पता चल गया. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. 10 + 21 इज इक्वल टू 31. आंसर के साथ हम साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू यूज़ करते हैं. इन बिटवीन 21 एंड 10 21 इज ग्रेटर, सो साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज माइनस. 31 के साथ आ गया माइनस. नाउ प्लस 27 एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय -3 एज इट इज. नाउ सॉल्व दीज 2 नंबर. फर्स्ट वी हैव डिसाइड विच ऑपरेटर्स अप्लाई ऑन दैट टर्म. minus plus minus 31 minus 27 is equals to 4. Now again with answer sign of use sign of greater value. Minus in between -31 and plus 27. 31 is greater, so sign of greater value is minus. Divided by -3. डिवाइड हो रहे हैं ये 2 टर्म्स. डिवाइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं -4/3. बोथ नंबर्स हैव नेगेटिव साइन, तो दिस नेगेटिव साइन एंड दिस नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस हो गए. यहाँ से दोनों नेगेटिव साइन खत्म हो गए. तो 4/3. नाउ डिनोमिनेटर इट्स मीन बॉटम नंबर इज लेस देन न्यूमरेटर मीन्स टॉप नंबर. सो वी हैव टू डिवाइड दिस एंड फाइंड आवर आंसर इन होल नंबर और मिक्स नंबर. दिस टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड मिक्स नंबर. 3 बाहर लिखा, 4 अंदर, 3 1s are 3, 4 - 3 1, 1 whole 1/3. ठीक है, ये होल नंबर है. This is called numerator and the bottom number is called denominator. ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 11. Question number 11. Find the value of हमें वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी फाइंड करनी है? -2 मल्टीप्लाई बाय -6.5 ब्रैकेट क्लोज्ड minus again minus, we have 2 minus sign together. -2 multiply by -3 plus 8 multiply by -2. ये कंटिन्यू है यहाँ पर. -8 multiply by 2 plus 5 square. ये पूरा
क्वेश्चन यहाँ तक कंटिन्यू है। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव री राइट द क्वेश्चन। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है और तमाम वैल्यूज़ इस क्यूब रूट के साइन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो फर्स्ट -2 मल्टीप्लाई बाय -6.5 माइनस अगेन माइनस, वी हैव 2 माइनस साइन टुगेदर। क्या हम कभी भी 2 माइनस साइन को एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं। जब भी हमारे पास 2 साइन एक साथ आ रहे होते हैं तो हम उन्हें ब्रैकेट की मदद से अलग अलग कर देते हैं। हमारी बुक में ब्रैकेट मौजूद नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि हम 2 साइंस को कभी भी इस तरह से बराबर बराबर नहीं लिखते, तो इसे ब्रैकेट्स की मदद से अलग कर लेंगे। मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज क्या करूँगी, -8 मल्टीप्लाई बाय -2। जहाँ पर मेरी तमाम मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स ख़त्म हुई हैं, फिनिश हुई हैं, मैं वहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगी। एंड आफ्टर दैट +5 स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। ये वैल्यूज इसी तरह कंटिन्यू है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। This question also have multiple operator. To solve expression with multiple operators, we have to use BODMAS. ठीक है, तो solve this by using BODMAS. According to BODMAS, we have to solve the bracket first. To solve these brackets, we have to multiply these two numbers. We have to multiply 2 and -6.6. First, we have multiply the sign of that numbers, minus, minus, both minus, 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 plus. So the sign of this number is plus. Now multiply 6.5 and 2 by using calculator. 6.5 multiplied by 2 is equals to 13 plus 13. Okay. Now this minus as it is. Now solve the second one bracket. इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट से पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव सॉल्व इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट। बोथ हैव माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस 3 2 6. Now plus. Now this 8 is positive with plus sign and the 2 is a negative number with minus sign. So plus minus 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 लिख दिया as it is. Now numbers को multiply करेंगे. 8 multiply by 2, 8 2 16. Next step is again minus and 2 is positive number with plus sign. So minus plus minus and 8 2 16. Bracket close. Now plus 5 square as it is. नेक्स्ट स्टेप में अब हम ऑपरेटर सॉल्व करेंगे. इक्वल साइन, क्यूब रूट 13 as it is minus bracket 6 minus. First we have solved this bracket. So plus minus minus 16 minus 6 10, and in between 16 and 6, 16 is greater and sign of greater value is minus, so minus 10. Now minus 16 as it is and plus 5 square as it is. According to BODMAS we have solved bracket first. तो अभी मैं तमाम स्टेप्स में सिर्फ हमारे ब्रैकेट्स को ही सॉल्व कर रही हूँ और बाकी ऑपरेटर्स को टच नहीं कर रही. अगेन क्यूब रूट 13 as it is. To solve this bracket, add these two numbers, minus minus plus, and 10 plus 16 is equals to 26. Sign of greater value is minus, so minus 26. Now plus 5 square as it is. Now again to solve this bracket we have to multiply these two signs, these two negative sign. So 13 as it is. Cube root 13 minus minus plus 26 plus 5 square. Now in next step we have to solve these operator, because after brackets we have solved operator first according to BODMAS. 13 plus 26. Now 5 square means 5 multiplied by 5, which is equals to 25. So 5 5s are 25. Now add these three numbers. 13 plus 26 plus 25 is equals to 64. Now by using calculator find cube root of 64. Press cube root button on your
calculator, and after that enter 64, press equal sign, and the answer is 4. Cube root of 64 is equals to 4, and this is our answer. Okay, now move on to the next exercise. Exercise 2C is finished here on question number 11. Now we have started exercise 2D. In exercise 2D, we are going to learn rational numbers and real numbers. According to the name of chapter, we are going to study 3 main topics in this chapter. First, integers. Second one is rational number, and the third one is real number. In the start of the chapter, we have learned integers. Now we are going to study rational numbers and real numbers in exercise 2D. Exercise 2D, page number 52. Okay. Now rational numbers. What are rational numbers? In the beginning of the chapter, we have studied integers, set of integers. In a set of integers, we have 3 types of number: whole number, 0, positive numbers and negative numbers. 0, positive whole numbers and negative whole numbers. Now अब अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स में कुछ फ्रैक्शंस भी ऐड कर दूँ, फ्रैक्शंस, व्हाट आर फ्रैक्शंस? कोई भी ऐसे नंबर्स जो अपॉन की फॉर्म में लिखे हो, a अपॉन b की फॉर्म में, उन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 2, दीज ऑल आर कॉल्ड फ्रैक्शन, जो हमारे पास अपॉन की फॉर्म में है. इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन द टॉप नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर and the bottom one is called denominator. Okay, so with the help of these two numbers, numerator and denominator, एक फ्रैक्शन हमारे पास बन जाता है. एंड दीज 2 नंबर्स आर इंटीजर्स. ओके, ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. टॉप वन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द बॉटम वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. नाउ फ्रैक्शन समझ में आ गया. ऐसे तमाम नंबर जो इस फॉर्म में लिखे हैं अपॉन की फॉर्म में, 2 इंटीजर्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं. टॉप वन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द बॉटम वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. दे आर कॉल्ड फ्रैक्शन. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, which are the 3 types? First one is proper fraction. Second one is improper fraction. And the third one is mixed numbers. Mixed number is also a type of fraction. Now what are proper fraction? Those fractions in which top numbers means numerator is less and the bottom numbers means denominator is greater. They are called proper fraction. ऐसे फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर छोटा हो और नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो, they are called proper fraction. Now improper fraction, those fraction in which bottom number is less and the top one numbers means numerator is greater, they are called improper fraction. Now what are mixed number? Mixed number is written like that, like our answer of question number. ठीक है, ये mixed number है. क्यों? Because this number is the whole number and that one is fraction. So the mixture of fraction and whole number is called mixed number. So these type of numbers, this type of fraction who written like this, they are called mixed numbers. Okay, so these 3 types of fractions: proper fraction, improper fraction and mixed number. Mixed number, I've also called this mixed fraction, but mixed number. Now move on to the rational numbers. So when we add this type of fractions in the set of integers,
Now the set of integers becomes set of rational numbers. Okay. Set of rational numbers. Integers plus fraction. So the set of when we add these two numbers together means integers and fractions mixed together. So the set of numbers become rational numbers. So this is called the set of rational number. Now according to your book definition, rational number is a number that can be expressed the value of two integers a and b in the form of a upon b where b is not equals to 0. दोबारा रीड कर रही हूँ. रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स a and b in the form of a upon b where b is not equals to 0. कह रहे हैं वो तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे जो a upon b की फॉर्म में लिखे हुए हों. ठीक है, वो तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे. लेकिन एक जो उन्होंने हमारे पास कहा है कंडीशन है वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0. b मीन्स द डिनोमिनेटर द बॉटम वन नंबर. कह रहे हैं बॉटम नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. एक ही जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें वो 0 भी हो सकता है, नो इश्यूज. बट द बॉटम नंबर्स मीन्स डिनोमिनेटर नेवर बी 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा. बाकी तमाम केसेस में वो रैशनल नंबर होगा. अच्छा जी, ये वाली रिस्ट्रिक्शन उन्होंने क्यों लगा दी कि b 0 ना हो. आप कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 0 करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आंसर आएगा मैथ्स एरर. मैथ्स एरर मीन्स बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स कि कोई भी ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर. जब ये नंबर ही नहीं है तो इट्स मीन ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा. इसलिए मेंशन कर दिया गया है कि b इज़ नाइदर b कभी भी 0 नहीं होगा. b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. अगर b 0 होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा. ठीक है. नाउ 5 इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट. यस, 5 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता इट्स मीन इट्स डिनोमिनेटर इज़ 1. और हम now a upon b बन गया. a is equals to 5, b is equals to 1 and any numbers written in this form a upon b form. So this is called rational number. This type of number is called rational numbers. उन्होंने हमें कहा है कि b यानी नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए. ये नहीं मना किया. इट्स मीन जितने भी तमाम होल नंबर्स हम पढ़ते हुए आए हैं 1 2 3 इन तमाम के डिनोमिनेटर क्या है 1 है. इट्स मीन दे ऑल आर रैशनल नंबर्स. All integers are rational numbers. अच्छा जी. Now move on to the next type of number which is irrational number. Now what are irrational numbers? Those numbers who are not an irrational number is a number that cannot be expressed in the form of a upon b. ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो a upon b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं. where a upon b are integers and b is not equals to 0. कह रहे हैं वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नंबर की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी वो a अपॉन b की फॉर्म में नहीं लिखे हुए और ना ही उनमें b इज नॉट इक्वल्स टू 0. इट्स मीन वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. वो तमाम नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाएंगे? वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं हैं बट वो नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 5. ठीक है. और कौन सी एग्जाम्पल है मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 7 पाई. ये अपॉन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब मैं इनकी वैल्यू फाउंड करूँगी डेसिमल में आएगी. ये होल नंबर्स भी नहीं है. दे आर नॉट इंटीजर, दे आर नॉट रैशनल नंबर. सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. वो तमाम नंबर जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ नंबर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आ जाएंगे रियल नंबर्स की तरफ. व्हाट आर रियल नंबर्स? ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें मैंने तमाम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को मिक्स कर दिया है.
वो सेट ऑफ नंबर कहलाएगा सेट ऑफ रियल नंबर. इन द सेट ऑफ रियल numbers we add all the rational numbers and irrational number. So the set of these two numbers, when we mix the set of these two numbers, rational numbers and rational numbers and irrational number, the new set form and this set of number is called real numbers. अब रियल नंबर्स के सेट में तमाम रैशनल नंबर्स भी हैं, इररेशनल नंबर्स भी हैं. ठीक है, तो कोई और नंबर ऐसा बचा है जो आपने पढ़ा हो और अभी हमारे सेट ऑफ नंबर्स में नहीं आया हो? रैशनल नंबर्स के सेट में तमाम नेचुरल नंबर शामिल हैं, ज़ीरो शामिल है, नेगेटिव नंबर शामिल है, ऑल द फ्रैक्शंस शामिल है. उसके बाद जितने नंबर्स बचे उन सबको हमने इररेशनल नंबर्स कह दिया. रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को मिक्स किया तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म हुआ है. सेट ऑफ रियल नंबर्स में वो तमाम नंबर्स है जो हम अपने मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे. इट्स मीन रियल नंबर इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर जिसमें तमाम नंबर्स मौजूद हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप ऑफ डेसिमल. अब हमारे पास सॉल्व करेंगे डेसिमल्स आएंगे, यानी पॉइंट वैल्यू डेसिमल नंबर्स, जो पॉइंट की फॉर्म में नंबर्स लिखे हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स विच आर, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सिंपल वर्डिंग में अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो डेसिमल कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम डिवाइड करें तो मेरे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाए. जैसे मैं डिवाइड करी तो मेरे पास आंसर आया 2.3. ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर आया, वैल्यू ख़त्म, पूरा प्रॉपर वैल्यू आ गई किसी को डिवाइड करवा के. फिर आया 0.375, पूरी वैल्यू आ गई. ठीक है, मेरे पास पूरा नंबर आ गया. इस टाइप के डेसिमल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पर हमारे पास तमाम टर्म्स मौजूद हो, हम लिख सकते हो उसे. बहुत सारे डेसिमल ऐसे आते हैं, आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, सो ऑन चलते रहेंगे, ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो प्रॉपर डिवाइड ही नहीं हो रहा. मतलब वैल्यूज़ डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ कंटिन्यू है. तो इस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहेंगे? रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल. और ये जिसके टर्म्स कंप्लीट आ गए, लिमिटेड नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल. इस टाइप के डेसिमल जहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है या फिर एक ही नंबर ग्रुप में रिपीट हो रहा है. कभी कभी ऐसा भी होता है 3 4 5, फिर दोबारा 3 4 5, फिर अगेन 3 4 5, इसी तरह कंटिन्यू रहता है. या फिर इस तरह भी आता है 0.01, फिर 01 01 01. इस टाइप के डेसिमल्स कहलाएंगे रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल. रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स. ओके, now the third type of decimal is non recurring and non terminating. इट्स मीन ना ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ना ये वाली, ना तो टर्मिनेटिंग है, इट्स मीन ना तो स्टॉप हो रहे हैं वो कहीं पे किसी एक पोजीशन पे आके हमें प्रॉपर आंसर दे रहे हैं, और ना ही वो नॉन रिपीटिंग है, इट्स मीन वो रिपीट भी नहीं हो रहे. बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि हर पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो 3 1 2 5 9 6 5 1, मतलब अलग अलग नंबर आ रहे हैं. कंटिन्यू भी है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है. तो इस तरह के डेसिमल्स कहलाएंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये थी हमारे 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल. जब भी आप किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे और डेसिमल की फॉर्म में आंसर आएगा तो वो इन्हीं 3 टाइप्स में से कोई एक टाइप ऑफ डेसिमल होगा. नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2D. Exercise 2D, page number 52. First we are going to solve question number 1. In exercise 2D, we have studied how to add, subtract, multiply and divide rational numbers and irrational numbers and real numbers. Okay. In exercise 2D, we are going to study how can we add, subtract and multiply, divide real numbers. -1/2 plus -3/4. First we have to rewrite the question. Solution. Question rewrite करेंगे 1/2 plus -3/4 bracket close. As we know that according to board mass
first we have to solve the sign, first we have to solve these two signs because they are right together. So minus 1 upon 2 plus minus minus 3 upon 4. अब किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उसका नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर सेम हो। किसी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर यानी बॉटम नंबर सेम हो। क्या यहाँ पर दोनों के बॉटम नंबर सेम है? नो। यहाँ सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर है 4 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट वन इज़ 2. सो वी हैव टू मेक दीज टू नंबर सेम. हाउ कैन वी मेक दीज टू नंबर सेम? एक तरीका, वी हैव टू मेथड्स. First one is LCM method and the second one is cross multiplication method. Today we use cross multiplication method. How can we use it? जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे तो जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा या तो वो चेंज होगा, ठीक है, और या फिर अगर दोनों नंबर चेंज, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि हमें दोनों नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी. अभी यहाँ पर मेरे पास मैं 2 को इजीली 4 में चेंज कर सकती हूँ. हाउ? मल्टीप्लाइड बाय 2. 1/2. डिनोमिनेटर को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 बन जाएगा. लेकिन अपनी मर्जी से मैं कैसे नीचे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ? कोई एक प्रॉपर वे, कोई एक प्रॉपर मैथड होना चाहिए. तो वो क्या मैथड है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे. ऐसा क्यों किया हमने? यहाँ पर जब इसका मल्टीपल कुछ भी नहीं है, इट्स मीन इसका मल्टीपल क्या है? 1. ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा दोबारा नंबर वापस. यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2/2. कैंसिलेशन करेंगे 2 × 2, 2 × 2. क्या आंसर बना? 1 मल्टीप्लाई बाय 1. यही 1 ही आ जाएगा यहाँ पर भी. इट्स मीन अगर मैं यहाँ पर 2/2 ऐड कर रही हूँ तो उससे मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2/2 किया है, क्योंकि इससे मेरा एक्सप्रेशन जो गिवन है वो इफेक्ट नहीं होगा. -3/4 एज इट इज़. नाउ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 fractions is numerator is multiplied with numerator and the denominator is multiplied by with denominator. ठीक है, किसी भी दो फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉप नंबर मीन्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड द बॉटम नंबर इज मल्टीप्लाइड विद बॉटम नंबर. सॉल्व कर लेंगे. is equals to, now minus sign with 1 and 2 is positive, so plus minus minus and 2 multiplied by 1 is 2. Now divide sign, denominator multiply करेंगे. 2 multiplied by 2 is equals to 4 minus 3/4 as it is. Now both the denominators are same, so इन्हें 1 टाइम लिख लेंगे and numerator as it is लिखेंगे -2 -3. Now add these two number. फर्स्ट वी हैव टू चेक कि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो माइनस माइनस प्लस, वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इन बिटवीन 2 and 3, 3 इज ग्रेटर, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज माइनस, सो -5/4. नाउ टेल मी, दिस इज एन proper fraction or improper fraction? It is an improper fraction because denominator means bottom number is less and the top number is greater. So improper fraction है, इसलिए divide करेंगे 4 बाहर, 5 inside, 4 1s are 4, 1 remainder. The answer is minus sign as it is 1 whole 1/4 answer. Now the next part is part C, question number 1C. Question number 1C, you have to solve this part by your own self. Question number 1C. आप खुद इसे सॉल्व करेंगे, डू इट योर सेल्फ. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरह से करेंगे. इन पार्ट सी वी हैव नंबर, मिक्स नंबर 5 whole 1/5 and the second number is -4 whole 1/2. Before solving these two number, first we have to solve this mixed number. Mixed number को solve करने के लिए क्या करेंगे? 5 multiply these two number, 5 multiply by 5 bracket close. Now after that add with
दिस नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 होल 1/2 को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 5 are 25 plus 1 divided by 5 and minus 4 2 are 8 plus 1 divided by 2. Now add this 26 divided by 5 and it is become minus 9 divided by 2. Now we have these two numbers similarly like part A. Now solve this. How can we solve this? हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 26/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/2 से एंड 9/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5/5। इस तरह आप इसे कंटिन्यू करके आगे सॉल्व करेंगे। आई होप क्लियर हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 148, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 52 एंड 5 2 जा 9, 9 5 जा 45 एंड 5 2 जा 10। इसी तरह से फर्दर सॉल्व कर देंगे और एक स्टेप और मेंशन कर देते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 52 डिवाइडेड बाय 10 एंड माइनस 45/10। एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया 1 टाइम। 52 माइनस 45 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर we have 7/10 and it is an proper fraction, तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 7/10 is our answer। ये भी पूरा सॉल्व हो गया है yourself। ठीक है, so question number 1A and 1C। now move on to the next part, question number 3A। in between question in question number 3A we have to multiply two fractions। question number 3A 15/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप रीराइट द क्वेश्चन। 15/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। नाउ टू मल्टीप्लाई two fractions we have to multiply the top number with the top number and the bottom one with the bottom one. Top number is called numerator and the bottom one is called denominator. But before multiplying these two numbers मैं चेक कर लूँगी कि इसमें अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन कर लें। बट कैंसिलेशन के लिए एक बात ज़रूर कंसिडर करेंगे कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा। इट्स मीन टॉप नंबर और बॉटम नंबर ही एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, अब चाहे आप इस फॉर्म में कैंसिल कराएं या इस नंबर को इससे कैंसिल कराएं, नो मैटर। बट कैंसिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक नंबर न्यूमरेटर है तो दूसरा डिनोमिनेटर हो। बराबर बराबर वाले नंबर्स को मीन्स मल्टीपल्स को कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिलेशन कर लेते हैं। 15 और 3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें। 3 1 3, 3 5 15। नाउ 4 and 8 both are divisible by each other। 4 1 4, 4 2 8। रिमेनिंग चीज़ें जो बची हैं वो लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ मल्टीप्लाई 5 1 5 and 2 multiplied by 1 is equals to 2 1 2। These are improper fractions। तो मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड करके आंसर देंगे। 2 बाहर 5 1 2 1 2 सॉरी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 is greater, so 2 2 4, 1 remainder। So the answer is 2 whole 1/2। Answer of question number 3A। Now move on to the next question, question number 3C। In question number 3C we are going to divide two fractions। Number 1 is 15/4 divided by 5/2। Solution first step rewrite the question। 15/4 divided by 5/2। Now how can we divide two fractions? यहाँ अगर वर्ड्स लेंगे 3 डिवाइड्स हो गए। 15 डिवाइडेड बाय 4 अगेन डिवाइड, देन 5 डिवाइडेड बाय 2।
इस डिवाइड साइन को मैं मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर सकती हूँ। कैसे? दिस डिवाइड साइन इज विद आवर सेकेंड टर्म विच इज़ 5/2, 15/4 एज इट इज़ लिख लेंगे। नाउ मैंने इस 5/2 को स्वैप कर दिया, टर्न कर दिया 2/5। नाउ दिस डिवाइड साइन इज ऑल्सो चेंज एंड बिकम मल्टीप्लाई। डिवाइड का इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इन्वर्स मीन टर्न कर, वैल्यूज़ को स्वैप किया, टर्न किया। तो 5/2 को मैंने टर्न किया, इन्वर्स, डिवाइड का इन्वर्स आ गया मल्टीप्लाई, और 5/2 का इन्वर्स आ गया 2/5। ना बिल्कुल इसे क्वेश्चन नंबर 3A की तरह सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन की रिमेनिंग चीज़ें कॉपी की। 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। नाउ द आंसर इज 3/2। 3/2 अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिवाइड करेंगे इसे 2 3, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। आंसर क्या है? आंसर इज 1 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 3C का आंसर है ये। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 4A। In question number 4A, you have to use a calculator to check the answer of question number 3। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और इन आंसर्स को चेक करेंगे जो हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व किए थे, कि ये आंसर क्या जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तब भी इसी तरह आएंगे सेम या नहीं। ये टास्क आप खुद कंप्लीट करेंगे। यू हैव टू यूज़ योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो क्वेश्चन नंबर 4A and C part is your home task, so you can do it yourself. Okay, now move on to the next questions. Question number 5A। क्वेश्चन नंबर 5A भी हमारे पास बिल्कुल इसी मेथड से होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 5A आप खुद सॉल्व करेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वो आपको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकेंड पार्ट इज पार्ट C। क्वेश्चन नंबर 5C। -6 होल 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14। नाउ वी हैव 1 मिक्स नंबर एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहले इस मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी हैव रीराइट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन हैड -6 होल 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14। Now solve this one. To solve this, first we have to solve this mixed number. Minus sign equality, minus sign as it is. Multiply these two. 8 multiplied by 6 in bracket. Now add with the numerator plus 1 divided by 8 multiply by 3/14. Now solve minus sign as it is. 8 multiplied by 6. 8 5 are 40, 8 6 are 48. 48 plus 1 divided by 8 plus multiply 3/14. Now 48 plus 1 is equals to 49/8. ये वाला माइनस साइन हम नहीं यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3/14। नाउ कैंसिलेशन चेक कर लीजिए। अगर कोई नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। 7 के टेबल से ये दोनों कैंसिल होने। डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। सो जो रिमेनिंग चीज़ें कॉपी करेंगे। -7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। माइनस प्लस माइनस, 7 1 ज़ा 7 एंड 8 2 ज़ा 16। माइनस साइन एज इट इज़। आंसर इज 7/16, सॉरी 3। 7 3 ज़ा 21। नाउ इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिवाइड करेंगे इसे। 16 बाहर,
डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स को, 16 बाहर 21 अंदर, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 16 1 ज़ा 16 लिखेंगे, 32 इज ग्रेटर देन 21, 5 रिमाइंडर। सो द आंसर इज माइनस साइन 1 whole 5/16. Question number 5C is completed. Now move on to the next question, which is question number 6. In question number 6, you have to use a calculator to check your answer for question number 5A and 5C. तो ये पार्ट्स ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर वाले वो आप खुद परफॉर्म करेंगे, खुद मेंशन करेंगे। यूज़ योर कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5A एंड क्वेश्चन नंबर 5C ऑल्सो। दिस क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व इन योर कंटेंट सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 88. So use your calculator and find the answer of question number 5A and question number 5A and question number 5C also. So question number 6A and 6C, you can do it yourself. Okay. Now move on to the next question number 7A. In question number 7, we are going to multiply two decimal numbers. In question number 7, we studied how to multiply decimal numbers. Our first question is 14.72 multiply by 1/2. बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली हम अपना मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14.72 लिखा, मल्टीप्लाई 1/2, स्पेस कम है यहाँ पर। यहाँ नेक्स्ट जब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। For solving every question, first you have to rewrite the question. So यहाँ क्वेश्चन रीराइट कर देते हैं। 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1.2। आप मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ओके, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। So 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 14 4, 1 carry, 2 4 ज़ा 8, 9, 1 plus 9 and 2 1 ज़ा 2. Now cross multiplied by second number, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4 and 1 1 ज़ा 1. ऐड कर लेंगे 4 4 plus 2 8, 9 plus 7 16, 16 6, 1 carry on, 4 plus 1 5, 6 7, 6 7, 4 5 6 7 and 1. ना यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व किया जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो नंबर्स को, लेकिन ये डेसिमल नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पर पॉइंट किस नंबर के साथ मेंशन करूँ। यहाँ पर पॉइंट की पोजीशन क्या थी, 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे तो 2 डेसिमल पॉइंट। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1, तो 1 डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर किस पोजीशन पे पॉइंट आएगा ये हम इसकी मदद से डिसाइड करेंगे। कैसे, प्लस कर लें इन दोनों को, 2 डेसिमल पॉइंट प्लस 1 डेसिमल पॉइंट, इसके बराबर आएगा 3 डेसिमल पॉइंट। इस मीन यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। सो 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर मेंशन कर देंगे 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज इक्वल्स टू 17.664 आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट do yourself. Okay, question number 6C is question number 7C is exactly like question number 7A, so you can do it by yourself. Now move on to the next question, which is question number 8. In question number 8 we are going to study how to divide decimal numbers. Question number
8A part. Question number 8A on page number 52. Find the value of each of the following. 0.81 divided by 0.3. Solution. First we write the question. 0.81 divided by 0.3. Now it is divide. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3. डिनोमिनेटर हमेशा यही डिविजर होता है, इसका टेबल पढ़ा जाता है. क्या 0.3 का टेबल आप पढ़ सकते हैं? नहीं, कोई टेबल नहीं है इसका, तो इसे मुझे होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? पॉइंट अगर इस पोजीशन से यहाँ पर आ जाए तो ये 3.0 बन जाएगा, और 3.0 मीन्स 3 और 3 का टेबल होता है, और 3 का टेबल होता है हमारे पास. तो इसलिए इसे इस पॉइंट को मुझे यहाँ मूव करना है. अब यहाँ पे कैसे मूव करूँगी? ऐसे मैं अपनी मर्ज़ी से इस पॉइंट को यहाँ मूव नहीं कर सकती. जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, बैलेंस रखना पड़ता है. अगर मैं इस पॉइंट को एक पोजीशन मूव कर रही हूँ तो मुझे ऊपर वाले पॉइंट को भी एक पोजीशन मूव करना पड़ेगा. सो दिस 0.81 इज बिकम 8.1 एंड दिस 0.3 बिकम्स 3. नाउ डिवाइड दिस टू नंबर 8.1 एंड 3. 8.1, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 is greater, so apply 3 2 6. 2 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर कॉपी कर रहे हैं तो पॉइंट ऊपर कॉपी हो जाएगा. नाउ 3 7 21, so the answer is 2.7. so we can write 0.2. पहले यहाँ पर 2.7 लिख दूँ. नाउ आंसर देंगे 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3 is equals to 2.7. ठीक है, 2.7. Now move on to the question number 9. Question number 9A. In question number 9A, we have studied how to add two decimal numbers. Question number 9A. 4.3 minus 3.9. First we write the question. 4.3 minus 3.9. Now solve the bracket first. 4.3 as it is, minus plus 3.9. Now add these two decimal numbers, 4.3 and 3.9. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम अपने नॉर्मल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12. 12 2 1 कैरी ऑन, पॉइंट यहाँ लगा दिया. पॉइंट 4 1 + 5 6 7 8. सो द आंसर इज 8.2. यहाँ लिख देती हूँ आंसर. 4.3 minus 3.9 इज इक्वल्स टू 8.2. क्वेश्चन नंबर 9A कंप्लीट हो गया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10 we are going to solve 3 fractions. Find the value of each of the following. A part solve करेंगे. -8/5 -2 whole 1/4 -1/2. Here we have 3 fractions. We have to add or subtract 3 fractions to find our value, to find our answer. First we have rewrite the question. -8/5 -2 whole 1/4 and -1/2. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इक्वालिटी -8/5 minus plus 2 whole 1/4 and -1/2. Now we have two methods to solve these type of question. Firstly we have solved these mixed number, and after that we have to
this question, minus 8 upon 2. As you know that how can we solve mixed number? Multiply these two, 4 multiplied by 2. Now add with this numerator, plus 1 divided by 4 minus 1 upon 2. Now minus 8 upon 2 as it is, minus 4 to the 8 plus 1 divided by 4 minus 1 upon 2, minus 8 upon 2 minus 9 upon 4 minus 1 upon 2, 8 upon 5. Now इक्वालिटी साइन, अब मेरे पास 3 फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. मैं इन तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकती हूँ और चाहूँ तो इन्हें 2-2 करके भी सॉल्व कर सकती हूँ. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन्हें 2-2 के पेयर्स में सॉल्व करूँगी. पहले माइनस 8 अपॉन 5 एज इट इज़ लिखा. इन दोनों को सॉल्व करना है. इस डिनोमिनेटर को मुझे 4 बनाना है. इसे 4 बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1A में हम सॉल्व कर चुके हैं. माइनस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 अपॉन 2 से, इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5 minus 9 upon 4 as it is, minus numerator is multiplied with numerator, 2 1s are 2, and denominator is multiplied with denominator, 2 2s are 4, minus 8 upon 5 as it is. Okay, प्लस डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, वन टाइम लिख लेंगे, प्लस 9 माइनस 2 minus 8 upon 5 as it is, plus sign as it is, 9 minus 2 is equals to 7, 7 upon 4. Now we are going to solve these two numbers, which is minus 8 upon 5 and plus 7 upon 4. To make this, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. इस टर्म को हम करवाएंगे 4 से मल्टीप्लाई और इस टर्म को करवाएंगे 5 से मल्टीप्लाई. इक्वल साइन माइनस 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4. बिकॉज हम क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ कर रहे हैं डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, इसलिए इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करवाएं. एंड प्लस 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 5. न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर. माइनस 8 4 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, सॉरी 8 4 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20, प्लस 7 5 ज़ा 35 एंड 5 4 ज़ा 20. डिनोमिनेटर सेम हो गया, वन टाइम लिख लेंगे, माइनस 32 एंड प्लस 35 एज इट इज़. नाउ इन्हें किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले डिसाइड करेंगे. इन्हें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस 32, इट्स मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर. 35 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 3. नाउ द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज प्लस, तो द आंसर प्लस साइन का ही रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज़. दिस नंबर इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. 3 अपॉन 20 इज आर आंसर. नाउ यहाँ पर हमारे क्वेश्चन वीक नंबर 3 इज वीक नंबर 4 इज completed here. The remaining question of exercise number 2D we are doing in our next video lecture inshallah. Now move on to the homework diary. Your home task is, first you have to complete the work of your content solution, the week number 4 work of your content solution from page number 85 to page number 89. You have to copy your work of week number 4 from your content solution.
ठीक है. नाउ योर होम टास्क इज memorize the definitions. Memorize definition from your content solution. You have some definitions on your content solution, in your content solution on page number 86. So you have to memorize all of this. This is your home task for week number 4. So now this is all about today's class. Inshallah we will meet in our next class. Till then, Allah Hafiz.